بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی محمد رسول اللہ کریم۔ یہ پرابلم ڈفرینشیل ایکویشن کے لینئر پارشل ڈفرینشیل ایکویشن ود کانسٹنٹ کوفیشینٹ چیپٹر سے ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈی کا کوفیشینٹ بھی کانسٹنٹ ہے اور ڈی ڈیش کا بھی کوفیشینٹ کانسٹنٹ ہے۔ ڈی کا مطلب معلوم ہے کہ ڈفرینسیشن کرنا ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو ایکس، زیڈ پر یہ آپریٹ جب ہوگا تو ڈیل زیڈ اوور ڈیل ایکس کو ڈینوٹ کرے گا۔ اسی طریقے سے یعنی ڈی زیڈ کا مطلب ڈیل زیڈ اوور ڈیل ایکس، اور اسی طریقے سے ڈی ڈیش زیڈ کا مطلب ہوگا کہ ڈیل اوور ڈیل وائی، یعنی زیڈ کا ڈفرینسیشن ود رسپیکٹ ٹو وائی۔ اور یہاں پر ان کے آرڈر سیکنڈ ہے، اس لیے ڈی اسکوائر ہے، یعنی ڈی اسکوائر کا مطلب دو بار ڈفرینسیشن ہو رہا ہے ایکس کے رسپیکٹ میں اور ایسے ہی وائی کے رسپیکٹ میں۔ تو یہاں پر چونکہ اس کی پاور جو ہے وہ 1 ہے، اس طریقے سے زیڈ کے، تو اس لیے 1 پاور ہے، تو اسی لیے اس کو لینئر بولا گیا ہے، یعنی لینئر پارشل ڈفرینشیل ایکویشن، اور پارشل ڈفرینسیشن ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور یہاں پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر ایک ٹرم کی جو ڈگری ہے یعنی اس میں آرڈر ہے وہ سیم ہے، جو آرڈر یہاں پر 2 ہے وہی آرڈر یہاں پر 2 ایکول ہے، تو یہ ہوموجینیس ہو گیا ڈی اور ڈی ڈیش میں، اور اس کی جو آرڈر ہے وہ 2 ہے۔ تو اب اس طریقے کی پرابلم کو جو ہم سالو کریں گے تو ہمیں جنرل میتھڈ فائنڈ کرنا ہوگا، مطلب اپلائی کرنا ہوگا پی آئی کے لیے۔ اور اس طریقے کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کا کمپلیمنٹری فنکشن فائنڈ کریں گے، اس کے بعد پرٹیکولر انٹیگرل، اور کمپلیمنٹری فنکشن فائنڈ کرنے کے لیے اس گیون ڈفرینشیل ایکویشن کا یہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے اپنے۔ اس ڈفرینشیل ایکویشن کو آپ پہلے نوٹ کر لیں گے اپنے، یہاں پر ہمارا تو یہ لکھا ہوا ہے، نوٹ کرنے کے بعد لکھیں گے اٹس ایگزیلری ایکویشن۔ ایگزیلری کا مطلب ہوتا ہے ہیلپنگ، یعنی سہایک ایکویشن۔ ہیلپنگ ایکویشن کا یوز کریں گے تو اس میں جہاں پر بھی آپ کو ڈی نظر آئے گا وہاں تو ایم پٹ کر دیں گے، جہاں پر ڈی ڈیش ہوگا وہاں پر 1 رکھ دیں گے، تو یہ ایم اسکوائر مائنس 4 انٹو 1 اسکوائر از اکول ٹو 0 کے برابر پٹ کر دیتے ہیں، اور یہاں سے ایم کی ویلو کو فائنڈ کر لیتے ہیں۔ تو ایم اسکوائر کی ویلو مل گئی، 1 کا اسکوائر 1 ہو جائے گی، 4 کے ساتھ میں انٹو کر کے 4 ہو جائے گا، اور اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ میں لائیں گے تو پلس کا 4 ہو جائے گا۔ تو ایم کی ویلو فائنڈ کریں گے، اسکوائر روٹ 4 ہوگا، اسکوائر روٹ کی 2 ویلو ہوتی ہیں، تو یہاں پر ایک پلس ہوتی ہے اور دوسری مائنس ہوتی ہے، تو 4 کا اسکوائر روٹ 2 ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایم کی ہمیں 2 ویلو ملی، ایک تو پلس کی 2 ملی ہے، دوسری مائنس 2۔ ان سائن کے ساتھ میں ہم کمپلیمنٹری فنکشن کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2 آربیٹری فنکشن لینا ہوں گے، ایک فائی 1، یا نام اس کا آپ کا بک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، F1 بھی لکھا ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی نوٹیشن ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو کیسے لکھنا ہے، وائی پلس کا، جیسے یہ پلس کا 2 ہے تو پلس کا 2 لکھ دیں گے اور ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں گے، پلس دوسرے ایم کی ویلو کے لیے، کیوں ڈسٹنکٹ ویلو ہیں، الگ الگ ویلو ہیں یہ، اس لیے دوسرا فنکشن فائی 2 آئے گا، اور وائی اور اس کا وتھ سائن یعنی مائنس ہے تو مائنس آ جائے گا، اور پھر ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں گے۔ یہ تو کمپلیمنٹری فنکشن لکھنے کا طریقہ ہو گیا ایم کی ویلو کو دیکھ کے۔ اب مین فوکس جو ہوتا ہے، پرابلم جو ہوتی ہے وہ پرٹیکولر انٹیگرل کے لیے ہوتی ہے، تو پرٹیکولر انٹیگرل جو ہوتا ہے اس کو فائنڈ کرنا ہو تو 1/, میں لکھ دیتے ہیں، جو بھی آپ کا ڈفرینشیل ایکویشن دے رکھا ہے، زیڈ کا جو کوفیشینٹ جو ڈی اور ڈی ڈیش کا فنکشن ہوتا ہے اس کو آپ یہاں پر لکھتے ہیں ڈی اسکوائر مائنس کا 4 ڈی ڈیش اسکوائر، اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں جو بھی لکھا ہوتا ہے اس کو لکھیں گے، تو جو کہ بیچ میں مائنس کا سائن لگا ہوا تو آپ اس کو بریکٹ میں کر دیں، 4x/, وائی اسکوائر مائنس y/x اسکوائر، نہیں تو کنیکشن یہاں سے کٹ جائے گا اس کا، یہاں کہ یہ آپریٹر پورے پر آپریٹ ہو رہا ہے، تو اس پورے پر آپریٹ کرنا ہے، اور اس کے لینئر فیکٹر ہم لوگ یہاں پر کر لیں گے، کیونکہ یہاں پر جنرل میتھڈ کا یوز ہو رہا ہے، یہاں پر پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ لینئر ہونا چاہیے تو بھی ہم یہاں پر آپریٹ کر سکیں گے، تو جس میں ہماری ہیلپ مل جائے گی۔ یہ ہمارا جو ایگزیلری ایکویشن ہے وہاں پر آپ کو معلوم ہے ڈی رکھا تھا ہم نے ایم کی جگہ پر، اور ڈی ڈیش کے یہاں پر 1، اگر یہاں پر آپ ڈی ہی مانیں تو اس آئیڈینٹی کا یوز کر سکتے ہیں، اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر، کیونکہ یہ 4 جو ہے وہ 2 کا اسکوائر ہے، اور اس آئیڈینٹی کا یوز کریں گے اے پلس بی اور
a माइनस बी, तो यहाँ पर एक 2 का स्क्वायर हो जाएगा और d का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2d डैश का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ d का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा d प्लस का 2d डैश आ जाएगा और दूसरे में d माइनस 2d डैश आ जाएगा। इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है और इस ऑपरेटर्स पर। अब ये फंक्शन है 4x/y² माइनस y/x²। तो एक फैक्टर को आप छोड़ दीजिए और दूसरे फैक्टर को यहाँ पर इस ऑपरेटर पर ऑपरेट करेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगले पेज पर हम ये वैल्यू देख रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो चल रही थी वही वैल्यू है। तो पहले एक फैक्टर को आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, जो राइट हैंड साइड से पहले पड़ेगा उस फैक्टर को आप इस फंक्शन पर ऑपरेट कर देंगे। 1/d प्लस 2d डैश को ऐसे छोड़ दीजिए और हमें 1/d माइनस 2d डैश को यहाँ पर इस फंक्शन पर यानी 4x/y² माइनस y/x² को अपडेट करना है। आप चाहे इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट वाले स्टेप से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। d प्लस का 2d डैश, तो क्या होता है यहाँ पर d डैश हो और बीच में इस तरीके से हो, तो ये फंक्शन आपका जिस ऑपरेट होना है इंटीग्रेशन का, पहले तो साइन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इस फंक्शन में जहाँ पर x लिखा है वहाँ तो आप x वाले टर्म लिख दीजिए, जहाँ पर y है बस वहाँ पर थोड़ा सा उसकी वैल्यू को चेंज करना होता है। बाकी x की वैल्यू तो जैसी है वैसी लिख रहेगी, y की वैल्यू को चेंज करना होगा और ये इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में। और इस ब्रैकेट को हम, क्योंकि पैरेंथेसिस यहाँ पर आ चुके हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जो आपका ये वाला फैक्टर है इसको ध्यान में रखना होगा। देखिए यहाँ पर जहाँ पर d आपको नज़र आ जाए उसकी जगह तो आप कर दीजिए y और इसका साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें 2 और यहाँ पर d डैश है वहाँ पर x कर दें और एक कांस्टेंट यहाँ पर c कर दें। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं y प्लस c की y की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर y की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो राइट हैंड साइड में ले जाना होगा, इस 2x को ट्रांसपोज करना होगा, x माइनस का 2x हो जाएगा। तो y की वैल्यू ये आप पुट कर दिए जहाँ पर आपने y की वैल्यू रखनी थी। तो c माइनस 2x है और इसका स्क्वायर था वो स्क्वायर हमने कर रखा है, माइनस का साइन था। फिर y की वैल्यू जो कि c माइनस 2x होगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो इंटीग्रेट हम आसानी से कर सकेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करने में ये प्रॉब्लम हो सकती है, कि किस तरीके से किया जाए। देखिए लास्ट वाला जो है बहुत सिंपल नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको अगर हम सेपरेट कर लेते हैं c/x² कर देते हैं तो इसका भी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा और 2x/x² करेंगे। वो साइन तो अभी हम लोग देख लेंगे बाद में। 2x/x² करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 2/x बचेगा जिसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकेंगे। 2 कांस्टेंट है। प्रॉब्लम इस वाले फैक्टर के लिए है और इसको लिए हमें अलग से इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें इतना आसान नहीं लग रहा है कि जैसा कि न्यूमरेटर है वैसा डिनोमिनेटर बना सकें। हालांकि हो जाएगा, लेकिन और इस स्टूडेंट के लिए दिक्कत होगी। हालांकि अब माइनस का जैसे 2x है तो -2x बना देंगे, c ऐड कर देंगे, c डिफरेंस और फिर सेपरेट कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अलग से जो है यहाँ पर रफ कर लेंगे, यानी आप दूसरे पेज पे कर लेंगे, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे और फिर यहीं पर पुट कर देंगे। ये वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल के आ रही है, इसको यहीं पर छोड़ दें, आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जाइए, रफ पे करिए और जो आ जाए वो यहाँ पर इसकी जगह पर रख देंगे। आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए जैसा कि डिनोमिनेटर में ऐसे न्यूमरेटर में बना दें, लेकिन उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से लिखेंगे 4x/c माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसके पार्शियल फ्रैक्शन इस एक्सप्रेशन के हम कर देंगे। ये रफ पर काम चल रहा है अपना, आप अलग पेज पे कर सकते हैं। जब यहाँ पर देखिए ऊपर पावर 1 हो नीचे 2 पावर हो तो डिवाइड करने की तो ज़रूरत है नहीं। अब अगला देखते हैं इसका फैक्टर। तो फैक्टर तो पहले से यहाँ पर है, लेकिन है तो लीनियर, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, 2 पावर है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो 1 पावर के साथ यानी c माइनस 2x की पावर 1 रहेगी
और फिर cx माइनस 2x की पावर 2 रहेगी, और जितनी भी पावर होगी वो सभी एक एक करके आती रहती है, यानी 1 2 3 4। आपको मालूम है पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ऊपर आप कांस्टेंट यहाँ पर a और b रखते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड करके ए बी की वैल्यू को भी यहाँ पर पुट करना होता है, तब आगे आपके आएंगे ये पार्शियल फ्रैक्शन। तो अभी हम इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। ये क्वेश्चन से अलग समझ के अलग से हम ये सॉल्व कर रहे हैं, और इसको आगे बढ़ा दें और इसको हम एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम यही हो जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, या फिर आपको मालूम ही है कैसे इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये a इंटू सी माइनस 2x हो जाएगा, प्लस b इंटू ये पूरा कैंसिल 1 का इधर इंटू हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है 4x अपान सी माइनस 2x का होल अब स्क्वायर। ये पान वाले दोनों कैंसिल हो गए, तो ये न्यूमरेटर यानी 4x की वैल्यू जो होगी वो इसके इक्वल आ गई। आप एक अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो a c और माइनस का 2ax और प्लस का b। तो x का जो कोफिशिएंट है वहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस का 2a है और इस तरफ x का कोफिशिएंट 4 है, तो इसे आसानी से a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 4 अपान माइनस 2, यानी माइनस तो इधर आ जाएगा, 4 2 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है माइनस के 2। अब b की वैल्यू में फाइंड करना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हैं, तो हमने x का कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। अब जो कांस्टेंट जिसमें x नहीं है, तो राइट हैंड साइड में x जिसमें नहीं है वो है a इंटू सी और प्लस का b, इसमें a नहीं है, इसमें x नहीं है, और इधर जो है x यानी जिसमें नहीं है यानी कांस्टेंट वो ज़ीरो ले सकते हैं, यानी इस तरफ था ही नहीं टर्म, तो ज़ीरो के बराबर इसको रख दिया जाएगा। a की वैल्यू -2 आ चुकी है, इसमें पुट कर देंगे -2, इससे हमको b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जो कि b की वैल्यू हो जाएगी राइट हैंड साइड में ले आने पर 2c हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें b की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू -2 मिल चुकी है। इन a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये सारा का सारा काम जो है हमारा जो चल रहा है वो लेफ्ट हैंड रफ पे चल रहा है, तो हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुट कर देंगे। आप चाहे फेयर में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी बात है तो आप इसको रफ पे कर सकते हैं। तो a की वैल्यू है तो -2 अपान में c माइनस का 2x और प्लस b की वैल्यू जो है वो 2c अपान में कितना था, इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए, ये है, तो c माइनस 2x का होल अब स्क्वायर। अगर आप फेयर करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर लिख दिए नाउ दिस वैल्यू, और फिर बाद में हम बुला लेंगे। इक्वेशन पूरा आप फेयर के अंदर इसके अंदर ही रख सकते हैं। अब ये वैल्यू जो है इसकी उसको रिप्लेस कर देंगे, जो कि यहाँ पर था पी में था, उसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसकी जगह पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर जो अभी हमने कहा था इतना रफ पे कर दें, लेकिन आप पूरा फेयर करते रहेंगे तो पी को दोबारा से बुला लीजिए। पी इजिकल टू 1 अपान चल रहा था d प्लस 2d डैश और इंटीग्रेशन का साइन था, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और इसकी जगह पर हमें ये वाली वैल्यू पुट कर देना है, जो कि माइनस यहाँ पर भी ले सकते हैं 2 अपान सी माइनस 2x है, इसके बाद प्लस का ये 2c अपान सी माइनस 2x स्क्वायर है। इसमें हम थोड़ा सा देखिए चेंज करेंगे, यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और हम इसको सेपरेट भी करेंगे, c अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का c अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन करना आसान होगा। फिर माइनस प्लस ऊपर है 2x अपान में एक्स स्क्वायर है, बहुत ज़्यादा नहीं किया हमने, डायरेक्ट x कैंसिल होके हम दिखा देंगे आपको, और इन टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, और उसके लिए हम इंटीग्रेशन के साइन को अंदर ले जाएंगे, यानी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर फेंकते जाएंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, जो हम अगले पेज पर देख रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, जो बाहर अपान में चल रहा है वो है d प्लस का 2 डी डैश, इसको एज इट लिख दें बिना किसी चेंज के। फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को पहले लिख दें और इंटीग्रेशन साइन को स्क्वायर ब्रैकेट के हम अंदर ले जा रहे हैं। जो कांस्टेंट है उनको हम शुरू में लिखते जाएंगे, यानी सबसे पहले तो हमें -2 मिला, और इंटीग्रेशन 1 अपान में c माइनस 2x था, उसका इंटीग्रेशन करना होगा, जो पहला हमारा टर्म था। उसके बाद सेकेंड टर्म में इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी
2c कांस्टेंट से बाहर छोड़ दें, न्यूमरेटर में 1 मान सकते हैं, डिनोमिनेटर में होल ऑफ स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, c माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर है, ये दूसरे वाला टर्म हो गया। प्लस अब 2 टर्म और हमें लिखने के बाकी बचे हुए हैं, एक तो माइनस c यहाँ से बाहर ले लेंगे और 1/x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का यहाँ पर था 2 बाहर ले लिया और यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, अपान में x बचा, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इसको में टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करना होगा। तो अगले स्टेप में देख रहे हैं 1/, ये ऐसे लिख दें, d + 2d विदाउट एनी चेंज। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन, जो कि हम लोग जानते हैं कि log x होता है, उस बेस पर यहाँ पर लिख देंगे और x का जो कोफिशिएंट है -2, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। बस x की पावर 1 होनी चाहिए, तो 1/x कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है उससे आपको नहीं लेना है, बस आपको पूरा ऐसे x मानते हुए लिख देना है log के साथ। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। बस कोफिशिएंट को देखना है कि जितना भी कोफिशिएंट हो उससे आप डिवाइड कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर पावर 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं, यानी आप डायरेक्ट -1/x लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम न्यूमरेटर में ये ले जाएंगे, c - 2x की पावर -2 हो जाएगी। और फिर ये टर्म लिखना है, इसको भी बिल्कुल सेम यही टर्म है, लेकिन ये सिंपल है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। ये ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2, मतलब यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर ओनली 1 ही टर्म है। प्लस 2 और 1/x का इंटीग्रेशन, जैसे कि पहले वाला किया था, 1/x का इंटीग्रेशन log x यहाँ पर लिख दिया हमने। ये देखिए माइनस से माइनस और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/d + 2d, तो कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जो कि वैल्यू आई है log ऑफ c - 2x। कैलकुलेशन आपका है, आप चाहे तो और भी सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। प्लस का 2c, और जब इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो c - 2x की पावर जितनी होती है, मतलब इसे x मान के चल रहे हैं, x की बार n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसमें पावर जब ऐड हो जाती है उतनी से ही डिवाइड हो जाता है। लेकिन भाई थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि x की जो कोफिशिएंट है आपको उससे डिवाइड करना होगा, जो यानी -2 से डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट टर्म में भी ऐसे ही करना है हमको, तो प्लस का माइनस इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x की पावर जितनी होगी इसमें 1 ऐड किया और उतने से ही डिवाइड किया, फिर प्लस ये तो इंटीग्रेशन ये तो सॉल्व हो चुका है, इसको सिर्फ नोट करना था हमें। 1/d + 2d, इसको नोट कर दें ऐसे ही, log ऑफ c - 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस शुरू में ले लेते हैं और ये -1 बचेगा, यानी c/, ये असल में ऐसा भी कर सकते हैं, ये -1 बचा हुआ है, ये भी -1 प्लस हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसको, अपान में 1 आ गया सिर्फ c, और इसकी पावर -1 हुई, तो अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो यही जो है वो प्लस में हो जाएगी 1, c - 2x की पावर 1 हो जाएगी, प्लस के 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, और ये भी -1 होगा जो इस माइनस को प्लस कर देगा, और अपान में 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली c, और x की पावर जो माइनस है तो प्लस करने के लिए उसे अपान में लिया, यानी इसको c/, में x लिख सकते हैं। फिर लास्ट में एक टर्म बचा हुआ है जो यहाँ नीचे लिख देते हैं, 2 log x। फिर इतना इंटीग्रेशन करने के बाद हमको जो c है उसको, उस वैल्यू को वापस पुट कर देना चाहिए, यानी वापस पुट कर देंगे। जो रिलेशन था हमारा, देखें क्या थी c की वैल्यू, तो c की वैल्यू यानी जो ये वाली c की वैल्यू है वो है y + 2x, वो वहाँ पर अपना पुट कर दें, y + 2x पुट कर दें जहाँ पर c मिलेगा। तो d + 2d log ऑफ, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया, c की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, y + 2x और माइनस का 2x है, फिर कर्ली ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस था उसे कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट किया है, और प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू y + का 2x रख दी, c की वैल्यू अपान में भी वैल्यू रखनी है हमें,
यानी y प्लस का 2x, लेकिन यहाँ पर माइनस का भी 2x है और ये जो पैरेंथेसिस था उसको कर्ली ब्रैकेट में हमने लिख दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, प्लस का y प्लस का 2x, ये इसी की वैल्यू हमने पुट की है, अपान में x है और लास्ट में ये टर्म बचा हुआ है वो 2 log x यहाँ पर हमने रख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो कुछ कैलकुलेशन जो है वो करना होगा। 2x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये भी 2x प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब जो बच रहे हैं टर्म उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं अगले स्टेप में। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल वैल्यू चली आ रही है 1 अपान d प्लस 2d डैश, और उसके बाद जो वैल्यू बची है वो लिख देते हैं, यानी ये वैल्यू ओनली सिंपल होके आ गई है log बाई, तो इसको हमने यहाँ पर log बाई लिख देंगे, प्लस y प्लस 2x है और अपान में ये y है वो लिख दें, प्लस का यहाँ पर भी देखिए बचा हुआ है y प्लस 2x अपान में x, और लास्ट टर्म ये बचा हुआ यहाँ पर जगह हो गई। अब लिख देते हैं 2 log x, और इससे आगे सॉल्व करने के से पहले थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा, x बाई 1 y कर लेंगे 2, यानी सेपरेट करके लिख देंगे इसको, और इसको थोड़ा सिंपल हो जाएगा। फिर इससे हम लोग आगे ये ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को भी ऑपरेट करके जैसे कि पहले किया था वैसे ही करना होगा। तो अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। 1 अपान d प्लस 2d डैश, ये ऐसे नोट कर दिया है हमने, और log बाई फर्स्ट टर्म को ऐसे ही नोट कर दिया। नेक्स्ट टर्म देखिएगा, इसमें y प्लस 2x है न्यूमरेटर में, तो अब डिनोमिनेटर में y है तो अलग अलग सेपरेट करेंगे तो y अपन y हो जाएगा, और प्लस का 2x अपन में y हो जाएगा। प्लस ऐसे ही हम यहाँ पर थर्ड टर्म में देख रहे हैं y प्लस 2x है, अपान में x है तो सेपरेट करेंगे तो y अपान x हो जाएगा, और प्लस का 2x अपान में x हो जाएगा। और लास्ट टर्म यहाँ पर यानी फोर्थ टर्म 2 log x, इसको एज इट नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा और इधर y से y कैंसिल हो, 1 आ जाएगा। 1 अपान d प्लस 2d डैश log बाई, ये वैल्यू 1 आ गई, प्लस 2x अपान y प्लस y अपान x, प्लस ये कैंसिल हो गया 1, 2 ओनली 2 आ गया ये, और प्लस का 2 log x। इन दोनों टर्म को हम ऐड कर सकते हैं, तो 1 अपान d प्लस 2d डैश की वैल्यू आ चुकी है, यानी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं log y प्लस 2x अपान y प्लस y अपान x, और प्लस का 2 log x, और 1 और 2 ये 3 हो गए, लास्ट में हमने नोट कर दिया। अब जिस तरीके से पहले हमने सॉल्व किया था जिस मेथड से, उस मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। यानी आपको क्या करना है, d की जगह तो बाई रख लेना है और इसके साइन को चेंज कर देना है, ये माइनस प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, 2 और जो d डैश है उसकी जगह पर x कर देना है और राइट हैंड साइड में c लिख देना है। यानी अब ये आप पुट करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, और फिर कभी ज़रूरत होगी यानी y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी c प्लस का 2x रख देना है इसमें, और इस हटा के इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन, यानी जहाँ पर भी आपको y मिलेगा वहाँ तो आपको रखना है c प्लस का 2x पुट करना है, प्लस 2x की वैल्यू को वैसे ही रखना है, y की जगह आप c प्लस का 2x लिखना है, जहाँ पर भी y मिलेगा c प्लस का 2x पुट करना है, और फिर आपको इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना होगा। बाकी तो x के टर्म में यहाँ पर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। अब जो इस टर्म को भी इंटीग्रेट करना आसान है, और यहाँ पर ये टर्म थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन बढ़ा सकता है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, और पहले इंटीग्रेशन का साइन को हम सभी पर बांट देंगे। तो इंटीग्रेशन हमें करना होगा log ऑफ c प्लस 2x का इंटीग्रेशन, प्लस इस टर्म का इंटीग्रेशन है 2x अपान c प्लस 2x का इंटीग्रेशन, और प्लस इस टर्म का इंटीग्रेशन। इस टर्म को तो हम
الگ الگ کر سکتے تھے. چلیے ہم ابھی اسی میں کر لیتے ہیں. انٹیگریشن کا سائن جب ہم c/x کریں گے تب انٹیگریشن کرنا ہوگا, اور پلس یہ اور 2x/x کریں گے, یعنی 2x جب x کریں گے تو اس کا انٹیگریشن, اور پلس اس کا انٹیگریشن یعنی 2 باہر لے لیجیے, لینئر پراپرٹی اپلائی کر دی, 2 باہر لے لیا, اور یہاں پر ہمیں log x کا انٹیگریشن کرنا ہوگا, اور یہ 3 کا انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو x بریکٹ تو یہاں سے ہٹ چکا تھا اس لیے ضرورت نہیں ہے. اب اس کا انٹیگریشن کیسے کریں, تو اس کے لیے آپ کو معلوم ہے لاگرتھم جب ہوتا ہے تو آپ دوسرا فنکشن بند مان لیتے ہیں, اس کو فرسٹ مان لیتے ہیں اور دوسرے کو سیکنڈ مان لیتے ہیں, اور انٹیگریشن یہ اس فارمولے کا یوز کرتے ہیں. فرسٹ فنکشن ویسا ہی, اور سیکنڈ فنکشن کا انٹیگریشن مائنس فرسٹ فنکشن کا ڈفرینسیشن اور سیکنڈ فنکشن کا انٹیگریشن, اور دونوں فنکشن کا جو ملٹیپلیکیشن ہے اس کا انٹیگریشن کر دیں گے. اس فارمولے کا یوز کریں گے ہم. تو یہاں پر فرسٹ فنکشن جو ہے وہ ویسے ہی رکھیے, یعنی log c+2x کو ویسے رکھیں, اور 1 کا انٹیگریشن کریں گے تو x ہو جائے گا, مائنس اس کا ڈفرینسیشن کریں گے. جب اس کا ڈفرینسیشن log کا ڈفرینسیشن کیا ہوتا ہے 1/c+2x ہو جائے گا اس کا ڈفرینسیشن, لیکن یہ x نہیں ہے, اس کا دوبارہ سے کرنا ہوگا. تو c کا تو 0 ہو جائے گا, اور 2x کا 2 × 1 ہو جائے گا. تو فرسٹ فنکشن کا ہم نے ڈفرینسیشن کر دیا. اب سیکنڈ فنکشن جو کہ 1 ہے اس کا انٹیگریشن کریں گے, اور جو ان کا ملٹیپلیکیشن آئے گا اس کا انٹیگریشن. ابھی تو صرف ہم نے اس والے فارمولے کو جو اپلائی کیا تھا وہ یہاں پر آ چکا ہے, اتنا ہو چکا ہے. اسے جائیں آپ بریکٹ میں اسکوائر بریکٹ میں بند کر دیں. اس کے بعد اس ٹرم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہیں پر مل گیا, یہ ہمیں یہ پرابلم نہیں کھڑی کرے گا جیسے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ 2x حالانکہ اس کا بھی انٹیگریشن ہو جاتا ہے جیسے ڈینومینیٹر میں ویسے نیومریٹر میں بنا کے ہو جاتا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل سیم ہے تو پلس مائنس کینسل ہو جائے گا. یہ ہمارے لیے پرابلم آسان رہے گی. اور c جو کانسٹینٹ ہے یہاں پر باہر لے لیں گے, یہاں 1 کا انٹو مان سکتے ہیں آپ, پلس کا c الگ کر دیں اور 1/x کا انٹیگریشن کرنا ہوگا صرف, اور ایسے ہی یہ تو کینسل ہو گیا 2 سے 2 اونلی بچے گا, x کینسل ہو گیا سوری, تو اونلی 2 بچے گا. اور اسے ہم 2 کو 2 × 1 لکھ سکتے ہیں, تو 2 کو باہر لیں گے, 1 کا صرف انٹیگریشن کرنا ہوگا. ایسے یہاں پر پلس کا 2 ہے یہ, اور log x کا انٹیگریشن اسی فارمولا جیسے کہ ہم نے یہاں پر فارمولا یوز کیا تھا یہ والا جو نیچے لکھا ہوا ہے ویسے آپ یہاں پر یوز کرتے ہوئے اس کا log x کا آپ کو یاد بھی ہو تو لکھ دو, x log x مائنس x یہ ہوتا ہے. یہاں پر 1 کا انٹو مان لیں گے, اس کو فرسٹ اسے سیکنڈ کریں گے, سالو کرنے پہ اتنا ہی آ جاتا ہے. log x کا انٹیگریشن x log x مائنس x ہوتا ہے, یاد ہو تو اچھی بات ہے, نہیں تو آپ اسی فارمولے اس جیسا اس کو سالو کر دیں گے اس فارمولے کا یوز کرتے ہوئے. فرسٹ اس کو مان لیں گے, سیکنڈ اس کو مان لیں گے, پلس 3 کانسٹینٹ اسے باہر لے لیں گے. اور ہم کہاں پر تھے, یہ ٹرم ہو گئے, چلیے 3 × 1 کر لیں گے, 3 کو ہم باہر لے لیں گے, 1 بچے گا یہاں پر, اس کا انٹیگریشن کرنا ہے. یہ دونوں ایک ہی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک ہی لیبل پر. اور اب ہم نیکسٹ اس ٹرم کو لکھ رہے ہیں, اس x کو پہلے لکھ دیجئے, x × log of c+2x. اس کے بعد میں نیکسٹ دیکھیں یہ ٹرم تو ہم پلس کا یہ ہے مائنس کا یہ کینسل کر سکتے ہیں, ایک ہی ہے کیوں یہ بھی 2x/c+2x ہے, یہ بھی وہی ہے, پلس مائنس انٹیگریشن کا سائن بھی لگا ہوا ہے. اب یہ کینسل ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ بچا ہوا ہے پلس کا c, اور 1/x کا انٹیگریشن ہم لوگ جانتے ہیں log x کے برابر ہوتا ہے, اور پلس 2 × یہ x ہو جائے گا, اور پلس 2 کا اندر انٹو کر دیں تو یہ ہو جائے گا 2x log x مائنس 2x, اور پلس 3 × x 1 کا انٹیگریشن x ہو جائے گا. یہ 2x جو بھی مائنس کے تھے یہ, اور یہ پلس کے 2x یہ ہمارے کینسل ہو جائیں گے, ان کو ہم نے کینسل کر دیا ہے. اور ویلو واپس کر دیجیے c کی, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ c+2x جو ہے وہ y کے اکول ہے, ڈائریکٹ ہم c کو ہٹا دیں گے یہاں پر سے, لیکن ادھر c کے لیے ہمیں وہاں سے
सी की वैल्यू y-2x पुट करना होगी। तो यस, अगली स्टेप बस वैल्यू पुट करना है। इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल लगभग सॉल्व हो चुका है। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू बस हमें अपनी तरफ से जो माना हुआ है, देखिए पहली बार में तुमने सी माना था, इस बार का जो है हमें कुछ और सी डैश मान लेना चाहिए। तो अब की जो नीचे यहाँ पर जब भी हमने दूसरी बार में हमने लिया था उसे सी डैश, जहाँ पर भी है सी डैश कर लीजिए। हालांकि कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी वो ठीक नहीं माना जाएगा कि एक जगह आप सी की वैल्यू ये ले रहे हैं, दूसरी जगह ये, इसलिए अपनी गलती ना होने दें इसको। सी की जगह जहाँ पर भी आपको सी नज़र आ रहा हो वहाँ पर सी डैश कर लीजिए। छूटेगी ज़रूर, कोई छूटना नहीं चाहिए, हालांकि हमसे तो छूट जाएगा। तो सी डैश कर लीजिए जहाँ जहाँ पर सी है। हालांकि हम जब वैल्यू पुट कर देंगे तो कोई इफेक्ट उसका बाकी नहीं बचेगा, तो हम सी डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो y के बराबर हो जाएगा, यानी x इंटू log y हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल x इंटू log y हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की तरफ पढ़ रहे हैं प्लस का, फिर हम y इसकी वैल्यू रख रहे हैं जो सी डैश है। तो सी डैश की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, y माइनस का 2x, y माइनस 2x, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है log x से, तो यहाँ पर log x से मल्टीप्लाई करते हुए लिख दिया हमने। उसके बाद है प्लस का 2x log x, प्लस का 2x log x, ये टर्म कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट में 2x है वो नोट कर लीजिए, 3x है वो नोट कर देंगे। फिर इस ब्रैकेट को ओपन करके हमें टर्म कैंसिल करता हुआ नज़र आ रहा है, वो x log y लिख दिया, प्लस इस ब्रैकेट को ओपन किया, इसमें इंटू किया, y log x मिला, और जब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो 2x log x, और यहाँ पर पहले से मौजूद है 2x log x जो कि प्लस का है, और यहाँ पर जो वैल्यू आई थी ये 3x नोट कर लिया, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइनल वैल्यू आ चुकी है x log y प्लस का y log x, लास्ट में हमारा प्लस का 3x है। ये सारी वैल्यू हमने लिख दी है, और वहाँ पर हम बता दें कि हमने c की वैल्यू, क्योंकि c डैश की जो वैल्यू थी वो हमने यूज़ कर ली थी, कितनी वैल्यू पुट करी थी, y माइनस का 2x, ये वाली वैल्यू पुट की थी, तब इतना ये आया था। तो हमने सी माना था अपनी तरफ से, सी और सी डैश उनकी वैल्यू पुट कर दी। तो अब हम इसमें जो हमसे पूछा गया था सोल्यूशन, या कहना चाहिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन, वो लिख सकते हैं। हैंस दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो कि मिलेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके। शुरू में हमने पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया होगा, phi1, और ये वैल्यू थी y प्लस 2x और y माइनस 2x, y प्लस 2x प्लस phi2 y माइनस 2x। इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अभी भी ऊपर फाइंड की है, इसको बस नोट करना है, x log y प्लस y log x, प्लस का ये है 3x, इसको नोट लिख देंगे, हमारी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।